So students, our next topic is beta positive decay. Okay, in this case positron, there is emission of positron. First we write its general equation. It is x a z y a z minus 1 plus positron, okay, plus neutrino, okay. This is your beta positive particle, means positron. This one is neutrino, okay. So let's take one example. It is nitrogen 712 gave rise to carbon 612 plus positron, okay, plus neutrino. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਨ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। in this case Q value means in disintegration energy, this is negative, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ Q ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Q ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੂ ਸੀ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਫॉर बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है जी। ठीक है, इतने एनर्जी कौन प्रोवाइड करता बीटा पॉजिटिव डीके नूं होण लई, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक स्टूडेंट। एक और सिमिलर फिनोमेना है वो है इलैक्ट्रॉन कैप्चर, ये बीटा डिके दे विच ही आ रहा, इलैक्ट्रॉन कैप्चर। कई बार लगे जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बीटा पॉजिटिव डिके वास्ते, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्रोटोन, ठीक है, प्लस इलैक्ट्रॉन किहदे च कन्वर्ट हो जाता, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रीनो, है कि है न्यूट्रीनो, इलैक्ट्रॉन की कैप्चर हो गया ना, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है अपना प्रोटोन आ वो किनू कैच करता, केल शैल जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ उन्होंने कैच कर लैंदा, ठीक है, कैच कर लैंदे, किस कन्वर्जन हो जाती है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रीनो, ठीक है। ये फिनोमेना किहदे च कॉमन आ, इन हैवी एटम्स। सो स्टूडेंट अपनी लास्ट डिके है जी, थर्ड टाइप की जी डिके है वो है गामा डिके, क्या है गामा डिके। ये किहड़ियां वेव्स मिट होंदियां ने, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, कैमिस्ट्री च पढ़िया है, कैमिस्ट्री दे विच +1, ठीक है। कदों मिट होंदी है, जो अपना न्यूक्लियड होंदा एक्साइटेड स्टेट च, मान लो मैं इत्थे स्टार पाना, ये किहड़ी हैगी आ, एक्साइटेड स्टेट, किहड़ी हैगी आ, एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट चो किहदे च आउंदा ग्राउंड स्टेट ते आउंदा कित्थे आउंदा ग्राउंड स्टेट ते उदों की इमिट हुंदी आ EM वेव आ देखो गामा हुण मैं की कहना गामा ठीक आ गामा रेस जां की कहने आपां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਉਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਐਮਿਸ਼ਨ the nucleus is left in an excited state. The excited nucleus then undergoes to a lower energy state by emitting a high energy photon called gamma ray photon. Okay जी सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਆ 60 ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 27 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈਡ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਕੋਬਾਲਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਡਿਕੇ ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਕੇ ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਠੀਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ डबल स्टार है मैं एक्साइटेड स्टेट लिखूँगा दो बारी गामा डिके होनी है जी 2860 देखो हम पहला इतों कोबाल्ट ही कोबाल्ट ने कोबाल्ट तो कि चेंज होया अपना कि कन्वर्जन हुई निकल च हुई निकल एक्साइटेड स्टेट या निकल इस तो बाद गामा रेडिएशन इमिट करके कितने आ रहना पहले तो मैं आ दसन लगा इतों ठीक है इतों किधर जा रहा अपना इतों निकल नीचे आ जाएगा ठीक है ग्राउंड स्टेट वाले जाना ग्राउंड स्टेट अजे आई नहीं है इस तो बाद फरदर इतों फिर तुहाडा निकल इत्थे जाएगा ग्राउंड स्टेट 2860 आ देखो डाउन होना शुरू हो गया ठीक है कितनी एनर्जी मिट की गामा रेडिएशन कितनी है वैल्यू 1.17 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर फरदर निकल इतों ग्राउंड स्टेट से आया ठीक है डायरैक्ट नहीं आ रहा है निकल 2860 ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਟ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ 1.33 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਸਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ गामा फोटोन किवें इमिट होंदा ਜਦੋਂ अल्फा ते बीटा मिशन होंदी है उस तो बाद इलेक्ट्रॉन कित्थे चलदा एक्साइटेड स्टेट चल जांदा मिशन हो गए एक्साइटेड जो ग्राउंड स्टेट होंदा ते किहड़ी रेडिएशन इमिट करदा गामा रेज इमिट करदा ठीक है रीजन ये है दा गामा रेडिएशन किवें इमिट होंदी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है जी तो ग्राउंड स्टेट दे विच किन्ने टाइम च आउंदा एक्साइटेड तो ग्राउंड स्टेट के किन्ने टाइम च अपना न्यूक्लियर 10⁻10 सैकेंड न्यूक्लियर इन्ने टाइम च आ जाता बाय रेडिएटिंग फोटोन ऑफ एनर्जी किन्नी मैं तुहानूं लिखा चुका पहले आप जो पिछला मॉडल किया है del E is equal to E2 minus E1 ओके
किन्ने ऑर्डर की होंगी है 1 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन होंगी है, ठीक है, जो गामा फोटोन मिट होंगे आप कर ही चुके एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक स्टूडेंट्स, तो पहले अल्फा या बीटा मिशन होगी, बाद में स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक स्टूडेंट्स, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो तुहानूं पता ही है कि कोई भी न्यूक्लियाई है किवें डिके होंदा बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन, तो आप कर चुके 3 तरह की, ठीक है, डिके। हुण इहदे कोई लॉज है ने डिके दे। फस्ट की है जी कि रेडियो एक्टिविटी की आ स्पॉन्टेनियस प्रोसैस आ, इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसैस। ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी टैंपरेचर उत्ते डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर प्रेशर, ओके एक्सेट्रा। नैक्सट है कि ये रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है, ये हैगी अपने रैंडम प्रोसैस है, कि हैगी है रैंडम प्रोसैस, ठीक है जी। ये नहीं आप प्रोडिक्ट कर सकते भी किहड़ा एलीमेंट का किहड़ा पर्टिकुलर आइटम जिहड़ा वा डिसइंटीग्रेट हो रहा, ठीक है, मतलब मान लो ये तुहाडा एलीमेंट है, ये आइटम्स है ने, हुण असीं नहीं पता ला सकते भी यह आइटम डिसइंटीग्रेट कर रहा, यह डिके हो रहा या यह डिके हो रहा, वी कांट फाइंड आउट, ओके, ये असीं नहीं लभ सकते। जिहड़ा थर्ड पॉइंट है सैकेंड पॉइंट, जदों हुंदी है डिके ड्यूरिंग डिके जां इहनूं आपां कहने डिसइंटीग्रेशन कहने हैं, ठीक है, तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। ड्यूरिंग डिके जां तो मिट होएगा आइदर अल्फा पार्टिकल जां बीटा पार्टिकल मिट होएगा, बट एट ए टाइम एक पार्टिकल ही मिट होएगा, जां अल्फा जां बीटा, सेम टाइम ते 2 पार्टिकल मिट नहीं हो सकते, ओके, मतलब साइमल्टेनियस जिहड़ी हैगी आ एमिशन आ वो नहीं होएगी, ठीक है। एट ए टाइम एटम विल emit 1 अल्फा और बीटा पार्टिकल, एक टाइम से सिर्फ एक पार्टिकल इमिट होएगा, जां हैगा अल्फा तो जां हैगा बीटा पार्टिकल इमिट होएगा, ठीक है जी। तो तुहानूं पता ही आ थर्ड आप करते हैं, तुहानूं पता जो मिशन होंदी है अल्फा पार्टिकल की, किहदी मिशन होंदी है अल्फा पार्टिकल की, ये तो अल्फा पार्टिकल मिट हो रहा, तुहानूं पता ना ये की होंदा, जिवें ए एक्स जेड आप कर ही चुके हैं, वाई ए -4 जेड -2 प्लस अल्फा पार्टिकल मिट होंदा, मतलब जो नवा अपने को न्यूक्लियाई आउंदा नवा आइटम आउंदा एटॉमिक नंबर कितना एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाता 2 तो मास नंबर कितना 4 डिक्रीज हो जाता, बीटा जो बीटा नैगेटिव बीटा पॉजिटिव आप कर चुके हैं, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ बीटा नैगेटिव डिके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ बीटा पॉजिटिव डिके ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਕ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जो डिके हो जाएगी नवा ਜਿਹੜਾ एलिमेंट आएगा तो ਉਹਦੀ अटोमिक नंबर मास नंबर की रहेगा सेम रहेगा, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ही ਆਪਾਂ पॉइंट कुछ डिस्कस की है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ रेडियो एक्टिव डिके लॉ करिए, ठीक है जी। हाँ जी, रेडियो एक्टिव डिके लॉ की हैगा नंबर ऑफ एटम्स disintegrated per second at any instant is directly
proportional to the number of radioactive nuclei actually present in a sample at that instant। ये क्या है अपना रेडियोएक्टिव डिके लो, ठीक है। मतलब ये की कहना कि जी डिके आ किन्ने एटम एक किन्ने न्यूक्लियाई एक सैकेंड दे विच डिके होणगे वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा वा कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा वा जिन्ने उस टाइम ते न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सब तो पहले मैं दसन लगा तुहानूं आ ने कहना नंबर ऑफ इत्थे न्यूक्लियाई कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सैकेंड, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सैकेंड की हो गया, रेट ऑफ डिके हो गया ना, की हो गया रेट ऑफ डिके। मतलब कि किहदे कोल होएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सैकेंड, मतलब मान लो जे एन न्यूक्लियाई है किन्ने आ किन्ने न्यूक्लियाई है वा इनू करन तो पहले आपां लिखदे लैट देयर बी एन न्यूक्लियाई इन ए सैंपल। आप सैंपल ले लिया उहदे विच किन्ने न्यूक्लियाई है एन न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो आप फिर मान लेने लैट डी एन न्यूक्लियाई डिके इन टाइम डी टी, ठीक है। डी एन मतलब स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किन्ने टाइम च डिके होए डी टी टाइम च डिके हो गए। रेट ऑफ डिके की होएगा, रेट ऑफ डिके आप हुणे कर चुके हैं आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर सैकेंड एक अपना रेट ऑफ डिके, ठीक है। रेट ऑफ डिके अपना की होएगा किहदे कोल हैगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ओवर टाइम, ये ना अपना, ठीक है। जो रेट की गल करते हैं आप उदों देखना ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सैकेंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सैकेंड मीनस इनू कहने पर रेट ऑफ डिके नाल किहड़ा साइन आएगा माइनस, माइनस तां आएगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हुण अपना रेडियोएक्टिव डिके लॉ की हैगा उन्हें क्या ये रेट ऑफ डिके आ ये किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा जिन्ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ प्रेजेंट सैंपल दे विच, ये आप लिख दिए माइनस डी एन ओवर डी टी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हुण जो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा मतलब यदा मतलब की है उन्नी ज़्यादा डिके होगी न्यूक्लियाई की जिन्ने ज़्यादा सैंपल के न्यूक्लियाई होंगे उन्नी ज़्यादा डिके होगी, उन्ने ज़्यादा न्यूक्लियाई डिके होंगे, ठीक है। अगे नैक्सट देखो हुण देखो मैं मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दा इनू साइन हटा दा मेरे को की आ जाएगा लैमडा इनू मैं लिख दाँगा लैमडा ये है अपना कॉन्सटेंट किहड़ा कॉन्सटेंट है इनू आपां जां कह दें डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट जां कहने आपां इनू डिके कॉन्सटेंट जां कहने रेडियो एक्टिव कॉन्सटेंट, ठीक है जी। तो लैमडा कितने डिपेंड करता इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट, ठीक है। और एक गिवन एलिमेंट एक कांस्टेंट होएगा, जो एलिमेंट बदल दोगे लैमडा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो सेम एलिमेंट लैके वो डिसइंटीग्रेशन करवाओगे तो वो की रहेगा सेम रहेगा लैमडा वो वास्ते, ठीक है जी। हुण अपना की आ गया रेडियोएक्टिव डिकेल आ गया माइनस डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू लैमडा एन। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है डिफरेंशिएशन है ना, मतलब एन इज़ वेरिंग विद टी लगी समझ माइनस में इधर लिख लो, ठीक स्टूडेंट्स। हुण आपां ना इहदी की करनी है इंटीग्रेशन करके इहनूं सॉल्व कर लैंदे आं आपां। देखो एन नूं इधर लै आओ डी टी इधर लै जाओ माइनस लैमडा डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिए मान लो एन नॉट के अगे अपने इनीशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनीशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो एन की है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। ये तुसीं ना पहलां कंसिडर करना, मैं हुण नाल ही कंसिडर कर रहा, मैं तुहानूं बुक तो फोटो भेज दांगा तुसीं उहनूं प्रॉपर देख के डेरीवेशन करनी है। इत्थे मैं तुहानूं समझाउण डिया डेरीवेशन, बट जो तुसीं डेरीवेशन करनी है उहदे नाल प्रॉपर तुसीं थ्योरी जरूर लिखनी है, थ्योरी तो बिना मार्क्स नहीं मिलते। हुण किन्ने तो केरी वारी करन डिया एन नॉट टू एन जो टी इक्वल टू 0 टाइम उदों एन नॉट ही ना, टी इक्वल टू टी तो किन्ने हो गए एन हो गए, तो टाइम का ना फैक्टर। हुण तुहानूं पता है इंटीग्रेशन किहदे कोल होएगी लॉग ई एन नॉट टू
एन इज इक्वल टू माइनस लैमडा बाहर आ जाना ना, अंदर टी की पावर की होएगी 0 होएगी। तुहानूं पता ना एक पावर इनक्रीज हो जाती इंटीग्रेशन के 0 तो टी। हुण इत्थे लिमिट पुट करनी है, log n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैमडा टी। हुण तुहानूं पता log का फॉर्मूला log a माइनस log b किहदे कोल आ जाएगा, log a ओवर b इज इक्वल टू माइनस लैमडा टी। पता ना पहले टी पुट किया माइनस टी नूं 0 पुट किया वो 0 हो गया है ना। ठीक स्टूडेंट्स, जो log e इनू हटाओगे तो इत्थे यह कि चल जाएगा एक्सपोनेंशियल च आ जाएगा e की पावर माइनस लैमडा टी। आ एक्सपोनेंशियल टर्म आ तुसीं कीती होएगी। सो एन कि इक्वल आ जाएगा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैमडा टी। एन की है अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लैफ्ट जिन्ने रह गए। ठीक है, मान लो इनिशियली अपने को है 100 न्यूक्लियाई है, किसी टाइम टी ते आपां देखिया। ठीक है, मान लो उदों डिके हो जाते 20 डिके हो जाते हैं तो बचे किन्ने 80, वो क्या है अपना एन जिन्हें न्यूक्लियाई बच गए। एन नॉट की है वा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, टी की है टाइम, लैम्डा की है डिके कॉन्सटेंट। ठीक स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने बेस्ड ही न्यूमेरिकल आने ने। ठीक है जी, हुण आपां करते हैं डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट, इनू आपां डिफाइन करते हैं डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट लैम्डा। डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट लैम्डा, देखो ना डिफाइन करिए। एन कि इक्वल आ एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, अपना डिके लॉ आ। ठीक है, जो टी कि इक्वल है टी कि इक्वल है हम जो टी मैं 1 ओवर लैम्डा सबस्टिट्यूट करदा, पुट टी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा की होएगा, ए मेरा एक्सप्रैशन की आएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 ओवर लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसल, एन कितना आ गया एन नॉट ओवर ई। मतलब मेरे किन्ने टाइम्स रह गए मेरे किसी भी टाइम एन ते किन्ने न्यूक्लियर रह गए 1 ओवर ई टाइम्स एन नॉट। ठीक है, सो इन मैं किवें डिफाइन करांगा हुण देखो, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट ऑफ ए radioactive element is the reciprocal of time at the end of which the number of atoms left undecayed in a radioactive sample reduces to 1 over e time the original number of atoms in the sample। मतलब लैम्डा किहदे कोल अपना मीनस लैम्डा की है अपना रेसिप्रोकल, इनमें इतों कन्वर्ट कर देना लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर टी। लैम्डा की है अपना डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट की है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है, ये वैल्यू है लैम्डा की जदों अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किन्ने रह जाते हैं, किन्ने डिके होने तो रह जाते हैं, एन नॉट ओवर ई 1 ओवर ई टाइम द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिन्ने टाइम ते इन्ने रह जाते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, जिन्ना टाइम हैगा जिन्ने टाइम ते इन्ने रह जाते हैं ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल कर दो तो की आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट। ठीक है जी, नैक्सट करिए आप तो ये 1 ओवर ई नूं इहदी वैसे वैल्यू पता कितनी होंदी 1 ओवर ई दी, मैं लिख देना वा एन नॉट 1 ओवर ई की वैल्यू होंदी है 0.368। इन्हें लिख सकते हैं जां आपां की लिख कह सकते हैं एन इज इक्वल टू 36.8% ऑफ एन नॉट इनिशियल वैल्यू।
ठीक है। जो 36.8% जिन्ने तुहाडे मान लो 100 न्यूक्लियाई है तुहाडे इनिशियली है ना, फिर डिके हो गए मान लो किसी टाइम ते जे बचते आ ਉਹਦੇ किन्ने बचते न्यूक्लियाई 36.8%। तुसीं टाइम नोट कर लेना, ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ कर दो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। सो ਇਹਦਾ ਐਸआई यूनिट ਕੀ हो गया, एसआई यूनिट ऑफ लैम्बडा की होएगा टाइम का इनवर्स पर सैकेंड। ठीक है जी। दैन दूजे तरीके आप कह सकते हैं कि लैम्बडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। दैन में डेफिनेशन एक आसान करके लिख देना और पा के, लैम्बडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम during which the number of radioactive atoms reduces to 36.8% of initial value। जहाँ ते इन्ने की हो गए अपने रिड्यूस हो गए है ना, इन्ने टाइम तो रेसिप्रोकल करता उन्ने टाइम जिन्ने टाइम ते इन्ने अपने रह जाते हैं। जहाँ मैं की कह सकता कि लैम्बडा इज द और पा के मैं लिख देना लैम्बडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच 63.2% ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स डिके, जिन्ने डिके हो जाते मान लो इन्ने जो बचे आ तो डिके किन्ने होणगे 100% जो माइनस कर दो। मैं फिर कह रहा जो यह फार्मूला ना ये जो एन हैगा ये है तुहाडा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लैफ्ट अनडिके, ਜਿਹੜੇ डिके नहीं होए जिन्ने बच गए आ न्यूक्लियाई डिके होने तो वो तुहाडा एन वा किसी टाइम टी ते। ठीक है, ये नहीं भी जिन्ने डिके हो गए, नहीं ਜਿਹੜੇ अनडिके रह गए की आ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लैफ्ट अनडिकेड। ठीक स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक आप नैक्सट लेक्चर